हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस कोर्स ऑन बायोमैकेनिक्स। अब तक हम शोल्डर, एल्बो एंड रेडियल नर्व जॉइंट्स देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विथ wrist. So wrist consists of two compound joints. First is radiocarpal and second is midcarpal. So therefore as a whole wrist को biaxial भी बोला जाता है. So यहाँ पे we have a diagram of the wrist complex. Let us name everything. This here is the radius, ulna. Then in brown we have the proximal carpal row starting with scaphoid, lunate, triquetrum and pisiform. And in purple we have the distal carpal row, trapezium, trapezoid, capitate and hamate. And in yellow we have the metacarpals, metacarpal 1, 2, 3, 4 and 5. So carpals को याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है हमारे पास. Some lovers try positions that they can't handle. Some S for scaphoid, lovers L for lunate, try T for triquetrum, positions P for pisiform, that T for trapezium, they T for trapezoid, can't C for capitate, handle H for hamate. Some lovers try positions that they can't handle. या फिर दूसरा निमोनिक she looks too pretty, try to catch her. ये भी तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज करके कार्पल्स को याद कर सकते हैं. सो ये हो गया हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द रेडियोकार्पल जॉइंट. सो रेडियोकार्पल जॉइंट में प्रॉक्सिमली आता है रेडियस एंड द रेडियो अल्नार डिस्क दैट इज अ पार्ट ऑफ टीएफसीसी. टीएफसीसी मैंने बताया था ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स. And distally it includes the scaphoid, lunate and triquetrum. So talking about the articulating surfaces of the radiocarpal joint, the lateral radial facet articulates with scaphoid, medial radial facet articulates with lunate and TFCC articulates with triquetrum. Some part of TFCC also comes in contact with lunate in neutral position. So the proximal radiocarpal joint is oblique and angled slightly volarly and ulnarly. Frontal plane में रेडियस का इंक्लिनेशन इज अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्रीज. क्योंकि रेडियल लेंथ इज 12 मिलीमीटर मोर ऑन द रेडियल साइड देन ऑन द अल्नार साइड. ये फ्रंटल प्लेन है, यहाँ पे रेडियस इज 12 मिलीमीटर लॉन्गर देन ऑन द अल्नार साइड. सो दिस इंक्लिनेशन हियर इज अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्रीज. This is approximately 23 degrees. And in the sagittal plane, it is 11 degree volarly. So, ये अगर आप ऐसे प्लॉट करें, ये approximately 11 degrees volarly. क्योंकि posterior radius is longer than the volar radius. Now there is something called as ulnar negative variance and ulnar positive variance. So ये वाले डायग्राम में अगर मैं इसे ऐसे प्लॉट करूं, so this is ulnar negative variance. ulnar radius के कंपैरिजन में शॉर्टर है at the distal end. And this here same way हम इधर भी प्लॉट करेंगे. This is ulnar positive variance. Distal ulna is longer in relation to the distal radius. So अगर ulnar positive variance हुआ तो it can cause impingement of the TFCC. क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो जाएगी टीएफसीसी के लिए, दैट्स व्हाई इट विल कॉज इम्पिंचमेंट. वेराज अगर अल्नार नेगेटिव वेरिएंस हुआ तो इट कैन कॉज डीजेनरेशन ऑफ द रेडियोकार्पल जॉइंट्स.
which can be associated to the avascular necrosis of lunate या फिर Kienbock's disease. So this was ulnar negative variance and this was ulnar positive variance. This was inclination in the frontal plane and this was about the radial inclination in the sagittal plane. So now talking about the TFCC. The TFCC, that is a part of the articular disc. This articular disc is connected medially to the distal radius via two dense fibrous connective tissue laminae. Upper and lower. So the upper laminae consist of dorsal and volar radioulnar ligaments. Dorsal and volar radioulnar ligaments. And now the lower laminae. The lower laminae has connections to the sheath of ECU, triquetrum, hamate and base of fifth metacarpal. How? Through ulnar collateral ligaments. So TFCC के ये दोनों लैमिना है, अपर एंड लोअर. अपर में डॉर्सल एंड वोलार रेडियो अल्नार लिगामेंट्स होते हैं जो अल्नार हेड और अल्नार स्टाइलॉइड को अटैच करते हैं, और लोअर लैमिना इन सारी चीजों से कनेक्टेड है. कैसे? फ्रॉम द अल्नार कोलैटरल लिगामेंट. नाउ द आर्टिकुलेशन बिटवीन द प्रॉक्सिमल कार्पल रो एंड द डिस्टल रेडियस. प्रॉक्सिमल कार्पल रो से मेरा मतलब है स्कैफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम, और डिस्टल रेडियस ये होता है वाया लिगामेंट्स. कौन से? स्कैफोलूनेट इंटरऑशियस लिगामेंट एंड लूनोट्राइक्विट्रल इंटरऑशियस लिगामेंट. स्कैफॉइड और लूनेट के बीच में जो इंटरऑशियस लिगामेंट है वो, एंड लूनेट और ट्राइक्विट्रम के बीच में जो इंटरऑशियस लिगामेंट है वो, ये इनका आर्टिकुलेशन करेगा. Pisiform जो है, it is anatomically a part of the proximal row, but it does not participate in the radiocarpal articulation. Pisiform in fact एक sesamoid bone है जो कि FCU का मोमेंटम इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. FCU is flexor carpi ulnaris. अब अगर हम लिगामेंट्स और मसल्स की बात करें एट द रेडियोकार्पल जॉइंट, सो जो भी लिगामेंट्स और मसल्स रेडियोकार्पल जॉइंट को क्रॉस करते हैं वो मेनली स्टेबिलिटी का काम करते हैं एट द मिड कार्पल जॉइंट. एफसीयू ही एक ऐसा मसल है जो रेडियोकार्पल जॉइंट को क्रॉस करता है और पिसिफॉर्म को अटैच होता है इन द प्रॉक्सिमल रो, लेकिन उसके लूज कनेक्शंस ट्राइक्विट्रम के साथ भी होते हैं. So therefore the FCU muscle force goes from pisiform to triquetrum and from there to hamate and the fifth metacarpal via pisiform ligaments. Now let us see the mid-carpal joint. So mid-carpal joint is a functional rather than an anatomical unit. So mainly ये proximal and distal carpal row के बीच में articulation का काम करता है. That's why it is called as a functional unit rather than a anatomical unit. So going on to the ligaments. So ligaments में हमारे पास है दो ligaments. हमारे पास है दो, extrinsic and intrinsic. So extrinsic ligaments का काम है कार्पल्स को proximally रेडियस या अल्ना एंड डिस्टली मेटाकार्पल्स के साथ कनेक्ट करना. एंड इंट्रिंसिक लिगामेंट्स का काम है कार्पल्स को आपस में कनेक्ट करना, इसलिए इनको इंटरकार्पल या फिर इंट्रोशियस लिगामेंट्स भी कहा जाता है. अभी हम लिगामेंट्स को दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. पहले देखेंगे वोलार लिगामेंट्स, देन देखेंगे डॉर्सल लिगामेंट्स. सो वोलार लिगामेंट्स में एक्सट्रिंसिक में हमारे पास है वोलार रेडियोकार्पल लिगामेंट.
volar radiocarpal ligament। ये वोलार रेडियोकार्पल लिगामेंट के 3 पार्ट्स है। सबसे पहला है रेडियो स्कैफो कैपिटेट या फिर इसको रेडियो कैपिटेट भी बोलते हैं। देन दूसरा है रेडियो लूनेट, इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग पार्ट्स है, इसको रेडियो लूनो ट्राइक्विट्रल भी बोलते हैं। रेडियो लूनेट एंड लास्टली we have radio scapholunate। radio scapholunate, इनके नाम पे से हम इनके अटैचमेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इसमें से रेडियो स्कैफोलूनेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉक्सिमल पोल ऑफ स्कैफॉइड को स्टेबलाइज कर सकता है और अगर इसका डिसरप्शन हो गया तो इट विल कॉज स्कैफॉइड इंस्टेबिलिटी। ये वोलार रेडियोकार्पल लिगामेंट का एक एक्सटेंशन है, उसको बोलते हैं रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सो वोलार रेडियोकार्पल लिगामेंट इज वन ऑफ द एक्सट्रिंसिक लिगामेंट। उसके ये 3 पार्ट्स है जिसमें से रेडियो स्कैफोलूनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वोलार रेडियोकार्पल लिगामेंट का एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। Now the second extrinsic ligament that we have is the volar ulnocarpal ligament। ये ulnocarpal ligament के भी 3 पार्ट्स है। एक है TFCC, एक है ulnolunate ligament और एक है ulnar collateral ligament। Now going to the intrinsic ligaments, volar side पे we have scapholunate interosseous ligament। scapholunate interosseous ligament। ये जो scapholunate interosseous ligament है ये स्कैफॉइड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, therefore it is susceptible to degenerative changes। And second intrinsic ligament that we have on the volar side is lunotriquetral interosseous ligament। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास 2 थे, इंट्रिंसिक में भी हमारे पास 2 है। नाउ गोइंग ऑन टू द डोर्सल साइड। सो डोर्सल साइड पे हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक लिगामेंट है, वो है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट एंड इंट्रिंसिक में भी हमारे पास एक है, वो है डोर्सल इंटरकार्पल लिगामेंट। डोर्सल रेडियोकार्पल एंड डोर्सल इंटरकार्पल, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक वी बनाते हैं और ये वी जो है वो स्कैफॉइड स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करता है। सो प्रॉक्सिमल कार्पल रो एक मैकेनिकल लिंक की तरह काम करता है। डिस्टल रेडियस, डिस्टल कार्पल रो और मेटाकार्पल्स, ये तीनों के बीच में। सो लेट अस सी द डायग्राम अगेन। ये वाला डायग्राम जो हमने पहले देखा था, यहाँ पे हमारा प्रॉक्सिमल कार्पल रो है। दिस इज द मैकेनिकल लिंक बिटवीन द डिस्टल रेडियस, द डिस्टल कार्पल रो एंड द मेटाकार्पल्स। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरकैलेटेड सेगमेंट। यहाँ पे ये जो कैपिटेट है इसका हेड, द हेड ऑफ द कैपिटेट इज नोन एज द कीस्टोन ऑफ रिस्ट। यहीं पे we can locate the wrist coronal axis for flexion extension and AP axis for radial and ulnar deviation. Talking about wrist flexion and extension, scaphoid here shows the greatest movement during this motion and lunate shows the least movement during this motion. So ये जो wrist complete flexion से extension, ये जो movement है ये 3 parts में होती है। Let us see. So यहाँ पे ये हमारा फोरआर्म है, दिस इज द रिस्ट जॉइंट एंड हियर वी हैव द रिस्ट इन फुल
flexion. This is the wrist in full flexion. This here, जब wrist यहाँ पे आ जाएगा, this will be the wrist in neutral, and this the wrist will be in full extension. Okay. So ये full flexion से extension तक जाने के लिए 3 चीजें होती है. सबसे पहले the distal row moves on the proximal row. The distal carpal row moves on the proximal carpal row when the extension is initiated. ये flexion से जब हम extension initiate कर रहे हैं, so the distal row is moving on the proximal row here. Distal row on proximal row. This happens till we reach the neutral position. Neutral wrist position में जब तक हम पहुंचते हैं, तब तक the distal row keeps on moving on the proximal row. Next, from neutral till approximately 45 degrees of extension. So यहाँ पे we have 45 degree of extension. न्यूट्रल से 45 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन. यहां से यहां तक पहुंचने के लिए द डिस्टल रो एंड द स्कैफॉइड बोथ मूव टुगेदर ऑन लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम. सो डिस्टल रो प्लस स्कैफॉइड दोनों मूव करते हैं लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम पे. फ्रॉम न्यूट्रल टू 45 डिग्रीज, यहां तक जाने तक ये मूवमेंट होती है. द सेकेंड वन. थर्डली क्या हो रहा है, फ्रॉम 45 टू फुल एक्सटेंशन, यहां से यहां तक द होल प्रॉक्सिमल रो मूव्स ऑन TFCC एंड डिस्टल रेडियस. सो ये थर्ड पार्ट हो गया. फुल फ्लेक्शन से न्यूट्रल तक डिस्टल रो मूव्स ऑन द प्रॉक्सिमल रो. न्यूट्रल से 45 डिग्री तक डिस्टल रो एंड स्कैफॉइड मूव ऑन लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम. 45 से फुल एक्सटेंशन तक द होल प्रॉक्सिमल रो मूव्स ऑन TFCC एंड रेडियस. सो अगर हम इसे एक इजी रिप्रेजेंटेटिव वे में लिखे, सो दैट इज दिस D इज द डिस्टल रो. Here we have scaphoid, lunate, triquetrum, and TFCC and radius. So scaphoid, lunate, triquetrum is the proximal row. So in the first part, the distal row moves on the proximal row. This is the first one, from full flexion to neutral. Then on the second part, distal row and scaphoid are moving on the lunate and triquetrum. First part में distal row was moving on proximal row. Then second part में distal row and scaphoid is moving on lunate and triquetrum. This goes on from neutral to approximately 45 degrees of extension. Then on the third part, that is 45 degrees of extension to full extension, the whole proximal row here, this is the whole proximal row moving on TFCC and radius. This was one, the first one. This was 2 here and this was 3. This is how the movement occurs from full flexion to full extension. अब अगर हम full extension से full flexion जाए, full extension से full flexion, तो यही चीज रिवर्स में होगी. ये जो थर्ड पार्ट था वो पहले होगा, सेकेंड विल बी सेकेंड, एंड फर्स्ट पार्ट था वो लास्ट होगा, थर्ड होगा. From full extension to full flexion, the whole cycle will be reversed. Now talking about radial deviation and ulnar deviation. So for radial deviation, all of the carpals will slide ulnarly on the radius.
अगर रेडियल डिविएशन हम करें सो ये जो सारे कार्पल्स है वो अल्नार डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे एंड देयर विल बी फ्लेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल कार्पल रो एंड एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल कार्पल रो. Proximal carpal row will go into flexion and extension of distal carpal row. सेम थिंग अगर हम अल्नार डिविएशन करें सो यही सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी. ऑल ऑफ द कार्पल्स विल स्लाइड इन द रेडियल डायरेक्शन. देयर विल बी extension of the proximal carpal row and flexion of the distal carpal row. Now we shall see the muscles. सो फॉर मसल्स वापस हम वोलार एंड डॉर्सल ऐसे दो पार्ट्स में इनको देखेंगे. वोलार वी हैव 6 मसल्स. 6 मसल्स ऑन द वोलार साइड. देयर इज palmaris longus, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus and flexor pollicis longus. सो इनमें से ये 3 जो है दीज आर द प्राइमरी wrist मसल्स एंड दूसरे 3 जो है दीज आर सेकेंडरी wrist मसल्स. सेकेंडरी wrist मसल्स मतलब इनका मेन काम फिंगर्स पे होता है. सेकेंडरी दे विल एक्ट ऑन द wrist. palmaris longus और flexor carpi radialis जो है ये दोनों wrist flexion का काम करते हैं. इसमें से flexor carpi radialis is mainly active when there is flexion with radial deviation. बाकी टाइम पे इट आइदर ऑगमेंट्स द स्ट्रॉन्ग रेडियली डिविएटिंग फोर्सेस ऑफ ECRL या फिर ऑफसेट्स द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय ECRL. बाकी टाइम पे उसके ये दो काम रहेंगे, लेकिन मेनली व्हेन देयर इज फ्लेक्शन विथ रेडियल डिविएशन दैट टाइम इट विल बी एक्टिव. वेयरएज palmaris longus जो है इट डज ओनली wrist flexion, नो डिविएशंस. जैसे FCR wrist flexion एंड रेडियल डिविएशन में एक्टिव होता था, वैसे FCU जो है flexor carpi ulnaris wrist flexion एंड ulnar deviation के टाइम पे एक्टिव होगा. FCU crosses the wrist joint at the greater distance from the AP joint axis, that is the one that we have for radial and ulnar deviation. So therefore it becomes more effective. FCR although रेडियल डिविएशन में काम कर रहा है लेकिन इट वॉज वेरी नियर टू द जॉइंट एक्सिस, देयरफॉर रेडियल डिविएशन के टाइम पे इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव. वेयरएज FCU ग्रेटर डिस्टेंस पे क्रॉस करता है, देयरफॉर इट बिकम्स मोर इफेक्टिव इन द डिविएशन, दैट इज अल्नार डिविएशन. FDS एंड FDP मेनली फिंगर फ्लेक्सर का काम करते हैं एंड FPL मेनली थंब फ्लेक्शन का काम करता है. अगर हम इनका रिस्ट फ्लेक्शन फोर्स देखें सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिनर्जिस्टिक स्टेबलाइजेशन बाय द एक्सटेंसर मसल्स एट द डिस्टल जॉइंट. क्योंकि दे प्रिवेंट द एक्सेसिव शॉर्टनिंग ऑफ दीज मसल्स एट मल्टीपल जॉइंट्स, देयरफॉर दे प्रिवेंट द एक्टिव इनसफिशिएंसी. जब भी एक्सटेंसर मसल्स डिस्टल जॉइंट को सिनर्जिस्टिकली स्टेबलाइज करेंगे तभी ही इनका रिस्ट फ्लेक्शन फोर्स बढ़ सकता है. FDS एंड FDP के कंपैरिजन में FDS इज मोर कंसिस्टेंट विद द रिस्ट फ्लेक्शन. क्योंकि FDP ज्यादा जॉइंट्स को क्रॉस करता है, देयरफॉर ये ज्यादा जॉइंट्स पे शॉर्टन होगा, देयरफॉर देयर विल बी एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ दिस मसल एंड दैट इज व्हाई FDS इज मोर कंसिस्टेंट फॉर रिस्ट फ्लेक्शन. नाउ dorsally we have 9 muscles. ECRL, ECRB, ECU ये है हमारे प्राइमरी wrist extensors. Then we've got EDC, EIP, EDM, EPL, EPB and APL. ये है हमारे सेकेंडरी wrist extensors. ECRL is extensor carpi radialis longus, ECRB is extensor carpi radialis brevis and ECU is extensor carpi ulnaris. ये तीनों का प्राइमरीली काम आता है रिस्ट पे फॉर रिस्ट एक्सटेंशन. सो ECRB जो है यहाँ पे इट इंसर्ट्स इनटू द थर्ड मेटाकार्पल, whereas ECRL इंसर्ट्स इनटू द सेकंड मेटाकार्पल. Therefore ECRL का मोमेंटम ECRB के कंपैरिजन में शॉर्टर हो जाता है फॉर रिस्ट एक्सटेंशन and that is why extensor carpi radialis brevis is more efficient for wrist extension.
ECRB is active in all grasp and release activities except when these activities are done in supination. Supination के टाइम पे ECRB एक्टिव नहीं होता है. प्रोनेशन में जो भी एक्सटेंशन एंड ग्रास्प एंड रिलीज एक्टिविटीज होगी रिस्ट की, तभी ECRB एक्टिव होगा. So therefore we can conclude that the forearm position here is affecting the extensor carpi radialis brevis. Extensor carpi radialis longus हमने देखा कि it has a smaller moment arm for wrist extension, लेकिन रेडियल डिविएशन या फिर सपोर्ट अगेंस्ट अल्नार डिविएशन, ये दोनों चीजें जब भी रिक्वायर्ड होती है या फिर व्हेन फोर्सफुल फिंगर फ्लेक्शन हैज टू बी डन, तभी ECRL एक्टिव हो जाता है. नाउ सिंस कंपैरिजन में ECRB ज्यादा एक्टिव है, देयरफॉर द ओवर यूज ऑफ दिस विल कॉज इन्फ्लेमेशन एंड देयरफॉर this is the main reason for lateral epicondylitis, that is tennis elbow, inflammation of ECRB. ECU is active for wrist extension and in ulnar deviation position, and this one also is affected by the forearm positions. Pronation causes the momentum of ECU to reduce and therefore it is less effective as a wrist extensor in pronated position. So ECRB and ECU ये दोनों फोरआर्म पोजीशन से अफेक्ट होते हैं. EDC जो है वो मेनली फिंगर एक्सटेंसर है, लेकिन रिस्ट एक्सटेंसर के जैसे भी वर्क करता है विथ और विदाउट द डिविएशन, whereas the others here are mainly working on the fingers and thumb. So we've seen all the muscles volarly and dorsally. So now if you see in this diagram here, ये है हमारा volar साइड ऊपर, ये है हमारी डॉर्सल साइड नीचे. यहाँ पे हम सारे मसल्स को एक बार प्लॉट करेंगे. Here we have the FCR, flexor carpi radialis. Below it in yellow we have flexor pollicis longus. In pink we have the median nerve. Then here we have palmaris longus and flexor carpi ulnaris on the ulnar side. Here we have 4 flexor digitorum superficialis, one for each finger. And here we have 4 tendons of flexor digitorum profundus, one for each finger. Here we have ulnar nerve and artery. ग्रीन वाला है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड ब्राउन वाला इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. यहाँ पे वी हैव आवर प्रॉक्सिमल कार्पल रो. दिस हियर इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हैज अ distal portion that is the transverse carpal ligament. So this here is the transverse carpal ligament. The flexor retinaculum mainly prevents bowstringing of the long flexor tendons. Therefore, it maintains a length-tension relationship. So, flexor carpi ulnaris and palmaris longus इन दोनों को छोड़ के बाकी सब flexor retinaculum के नीचे से पास होते हैं. This was our muscles. We'll write it. So now we will talk about the wrist instability. So scaphoid, lunate and triquetrum ये जो तीनों है ये एक zigzag पैटर्न में होते हैं. अब ये डायग्राम देखिए यहाँ पे. This green structure is the distal radius. Brown one is the scaphoid. And the one in purple is the distal carpal row. यहाँ पे हम बात करेंगे capitate की. Whenever the scaphoid flexes on the distal radius, lunate extend होता है. lunate या फिर triquetrum, ये जो dotted portion है या इसको lunate या triquetrum बोलेंगे. So ये जब भी scaphoid flex करता है distal radius पे ये extend करेगा. और distal carpal row या फिर यहाँ पे हम बात करें capitate की, वो lunate के opposite direction में जाएगा. मतलब ये भी flexion के direction में जाएगा. ये नीचे हमारी वोलार साइड है और ऊपर हमारी डॉर्सल साइड है. सो लूनेट इज गोइंग ऑन टू द डॉर्सल साइड, इसलिए इसको हम बोलेंगे डॉर्सल इंटरकैलिटेड सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी, DISI. और यहाँ पे
This again is the radius. ब्राउन हमारा स्कैफॉइड है, पर्पल हमारा डिस्टल कार्पल रो, और यहाँ पे हम कैपिटेट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे लूनेट और स्कैफॉइड ये दोनों फ्लेक्स कर रहे हैं ऑन द डिस्टल रेडियस, और जो ट्राइक्विट्रम था वो कैपिटेट के साथ, यहाँ पे कैपिटेट के साथ ट्राइक्विट्रम भी है, वो एक्सटेंड कर रहा है. ये वापस ऊपर हमारा डॉर्सल साइड है, नीचे हमारी वोलार साइड है. ये है हमारा वोलार इंटरकैलेटेड सेगमेंटल instability, VISI. So when lunate or triquetrum are going in the dorsal direction, that is extending on the scaphoid, it is dorsal intercalated segmental instability. And when lunate is going in the volar direction, that is flexing with the scaphoid, that is volar intercalated segmental instability. तो इससे हमें पता चल रहा है कि द प्रॉक्सिमल कार्पल रो का स्टेबलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर रिस्ट फंक्शंस, एंड दैट स्कैफॉइड इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द डिस्टल कार्पल रो एंड द अदर टू बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कार्पल रो. अगर प्रॉक्सिमल कार्पल रो का स्टेबलाइजेशन एंड स्कैफॉइड का एक्टिंग एज अ ब्रिज मेंटेन ना किया जाए, सो इट विल कॉज दिस instability. So that was it about the wrist complex. Next time we will discuss about hand complex. Thank you so much for watching.